مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم چاہ پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کر نہیں سکیں گے مسجد میں، اب نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں۔ تو ہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار کریں یا کھائیں پئیں۔ پہلے سے نیت داخل ہوتے وقت کر لی تھی اور کچھ نہ کچھ اپنے عبادت کر لی تھی، درود شریف پڑھ لیے تھے تو ٹھیک ہے، اب نئے سرے سے وہ درود شریف یا 12 درود شریف یہ پڑھنے کا، یہ صرف اسی صورت میں نے کہا تھا کہ ابھی نیت کی ثواب کے لیے اعتکاف کی، تو اب یہ کچھ پڑھ لے، اس کے بعد کھائے پیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا 9واں روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں عاشقان رمضان جمع ہے، معتکفین موجود، مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بھائی شائع کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، جبکہ بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹلی کے شہر میلان میں 2011 میں مدنی چینل جب میں نے آن کیا، اپنا چینل لگایا تو پہلی مرتبہ میں نے وہ مدنی چینل دیکھا تھا، دعوت اسلامی کا بھی پتہ نہیں تھا، تو میر علیہ سنت کی زیارت ہوئی۔ آپ داڑھی کی بتا رہے تھے، داڑھی کے بارے میں کہ واجب ہے، تو الحمدللہ پہلی دن ہی دیکھنے سے میں نے داڑھی کی نیت کر لی اور داڑھی وغیرہ سجا لی چہرے پہ، اور زلفیں بھی بڑھا لی اور ماما شریف بھی سجا لی، اور اٹلی میں الحمدللہ اس دن سے مدنی ماحول میں مدنی چینل کی بہت بہاریں ہیں، ویسے لوگوں سے بھی سنی ہیں بڑی اور خود بھی ازمائی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام ہے، اور دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ یورپ میں ایک فائدہ مدنی چینل کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ یورپ میں انگلش نہ ہونے کے برابر ہے۔ یورپ میں دنیا کی بہت ساری نیشنز آباد ہیں، ان میں ہمارے اردو سمجھنے والوں کی بڑی تعداد یورپ میں آباد ہے، تو ان کے لیے یورپ میں مدنی چینل نعمت، بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے ماشاءاللہ۔ اور جن کو انگلش والے ہیں وہ انگلش مدنی چینل دیکھتے ہیں، جو بنگلہ زبان جانتے وہ بنگلہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر الحمدللہ عربی کا بھی ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کے چند پیسے دبا لینا یا کسی حقدار کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ظلم سے کیسے بچا جائے؟ وہ جس کا حق نکلتا ہے، پیسے دبا لیے یا کسی کو
मारा नाहक, बल्कि नाहक घूरा, तो ये भी जुल्म में ही आता है। अदा करना होगा, यानी माफ़ी मांगनी होगी। जहाँ तलाफ़ी है, जैसे पैसे दबाए थे तो तौबा भी करे, माफ़ी भी मांगे और उसको दे भी दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल यह है, जो बंदा बीमार हो, रोज़ा ना रख सके, तो वो फिदिया दे सकता है? एक रोज़े का कितना फिदिया बनेगा, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। मरीज़ फिदिया नहीं दे सकता। फिदिया उस बूढ़े शख्स के लिए या बूढ़ी खातून के लिए कि जो बुढ़ापा इतनी हद तक हो गया, शेख फ़ानी बोलते हैं इसे बूढ़े को, कि अब बुढ़ापा इतना बढ़ गया कि रोज़ा रखने की ताकत नहीं है। बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं, बुढ़ापे की वजह से ताकत नहीं है, आइंदा ताकत लौटने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसी सूरत में हर रोज़े के बदले एक सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार फिदिया अदा करे। अच्छा, अब अगर वो गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रख सकता है, तो फिदिया की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में क़ज़ा कर लिया करे। फिदिया देने के बाद फिर क़ुव्वत लौट आई और रोज़ा रखने की अब हिम्मत है उसमें, तो ये फिदिया जो दिया था ये नफल सदका हो गया, और रोज़े क़ज़ा कर ले जो छूटे थे। मरीज़ के लिए कोई गुंजाइश फिदिये की नहीं है। मरीज़ अच्छा हो भी जाता है ना, बीमार हो जाते हैं लोग, सही हो जाते हैं रोज़े रखने, बुढ़ापा नहीं है ना, बुढ़ापे का इलाज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहिल अहमद अत्तारी रावलपिंडी से। आज सुबह की फ़्लाइट से हम रावलपिंडी वापसी हुई हमारी। रुकन शुरा हाजी वकार मदीना साहब के साथ हम 3 दिन के मदीना काफ़िले में आपकी बारगाह में हाजिर थे। इन 3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान मदीना का माहौल अल्लाह अल्लाह वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त रूहानियत का मंज़र, इंसान की तबीयत और शौक़ ज़ौक़ इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का वहाँ कायम रहता है। आज वापसी होगी हमारी, और दिल इस वक्त इसी तरह उदास है कि जिस तरह मदीना पाक से जुदाई होती थी, और मदीना पाक से जब भी आए दिल उदास होता है, आज दिल उसी तरह उदास है। अल्लाह पाक प्यारे बापा जान आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आपका साया ता देर हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। माशाअल्लाह, मरहबा। हज़रत साहब से मेरा सवाल है कि रोज़े की हालत में तेज़ खुशबू लगा सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दें। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर सियालवी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हालत रोज़े में सुरमा लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? जवाब इनायत फरमाएं। तेल इत्र लगाना रोज़े में जायज़, सुरमा डालना भी जायज़ है, चाहे सुरमे का असर हल्क में महसूस हो, इसकी इजाज़त है रोज़े में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज़ है, क्या जिन्नात से अपने घर के मामलात हल करवाना ठीक है? रहनुमाई फरमा दे। जिन्नात हल करते कब हैं? जो इनसे हल करवाना, ये तो बाबा जी या बाज़ लोग होते हैं, बाबा जी भी नहीं होते, वो बस घरेलू औरतें होती हैं, या तो कि इनको ये दावे होते हैं कि जिन्नात की हाज़िरी है। कोई बोलता है बुज़ुर्ग की हाज़िरी है, फ़लाँ बुज़ुर्ग हूँ, फ़लाँ मज़ार मेरा उधर है, तो ये तो ढकोसले होते हैं। कोई बुज़ुर्ग किसी औरत या मर्द पर इस तरह हाजिर नहीं होते, ये बिल्कुल जहन बना लें, ये गलत है गलत है गलत है। ये बोलते हैं कि हम फलां बुज़ुर्ग हैं, ऐसा होता नहीं है। रात जिन ज़रूर आ जाते हैं, तो जिन्नात ये दमाले भी कर रहे होते हैं और सवाल के जवाब दे रहे होते हैं, तो इनको सवालत नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि जिन्नात को गैब की बात पूछना, देखिए आइंदा की, ये मतलब जायज़ नहीं है, और उसकी बात पर यकीन कर लेना आइंदा की, तो ये कुफ्र है। ये कुरान करीम से साबित है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है।
تو یہ اس طرح مطلب یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ حاضریاں آتی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ پاک و ہند میں ہوتا ہے، جہاں مطلب توہم پرستی زیادہ ہو اور اس طرح کا مطلب کوئی بولنے والا جو نہ ہو نا تو بولے وہ بھی پھنسے، یہاں ایسا ماحول ہے. تو یہاں اس طرح کے ہوتے ہیں، باقی باہر پتہ بھی نہیں ہے دیگر ممالک میں کیسی حاضری ہو بھی تو وہ حاضر اور حاضری اور جس پر حاضری ہوئی سب جیل کے سریوں کے پیچھے چلے جائیں، بھول جائیں، جنات بھی بھاگ جائیں سارے. لیکن یہ کہ جن کا اثر ہوتا ہے جنات تنگ تو کرتے ہیں. اب یہ جو جنات کو نہیں مانتے وہ تو بھول ہیں کہ سورہ جن قرآن کریم میں جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود کا انکار یہ کفر ہے. یہ قرآن سے جنات کا وجود ثابت ہے. جادو کا وجود ہے، جادو کا انکار کرنا کہ جادو کوئی شے نہیں ہے، جادو ہے نہیں، یہ بھی کفر ہو جائے گا کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. شیطان کا انکار کرنا کہ شیطان ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے کہ شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ باقی یہ حاضریاں جو آتی ہیں نا یہ عام طور پہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ ایسے ڈرامہ بازی ناٹک، کبھی ایسے واقعی جن آتا ہے وہ حساب کتاب کرتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ان سے سوال نہ کرے، ان سے علاج نہ مانگے، یہ نہیں کوئی کنڈا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ روزے اور بیماری کے تعلق سے سوالات ہیں. اگر شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگوائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بیماری کی حالت میں ناک میں اسپرے یا کوئی دوائی ڈالی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اب یہ ارشاد فرمائے کہ روزے میں ڈرپ لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کرنے سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اجزاء باریک باریک اس کے ذرات اجزاء ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی منع ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی جز اترنے کا خطرہ ہے. اور جب یہ کوئی جز اتر گیا، حصہ اتر گیا اس کا حلق کے نیچے، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. کسی نے روزہ رکھا اور روزے میں بیمار ہو گیا، اب کیا کرے بھائی؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مر جائے گا یا عقل چلی جائے گی وغیرہ، تو اس طرح کا صحیح اندیشہ ہو تو اب یہ کہ یا تو اس کا اپنا تجربہ یا کوئی طبیب حاذق، کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے جو خوف خدا والا ہو، تھوڑا بہت علم بھی رکھتا ہو، تو اس کے کہنے سے مطلب یہ کہ روزہ توڑ سکیں گے. اب بخار آ گیا، معمولی سا نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ اعذار نہیں ہے، یعنی یہ مجبوریاں نہیں ہے روزہ توڑنے کی. برداشت ہوتا برداشت کر لے بندہ. کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا سوال ہے قبرستان سے جانا رات کے وقت یا صبح کے وقت ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جائز تو ہے، رات کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہی نا جنازہ لے کر. البتہ اکیلا جانے میں اگر کوئی سناٹا ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے، تو اس میں منع ہے کہ ہو سکتا ہے ڈر جائے، کتا بھونکے تو سمجھے کہ جن آ گیا. تو یہ بعض وقت سنسنی ہوتی ہے، بعض ڈرپوک ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہ قبرستان میں رہتے ہیں. کسی دور میں ہم متوجہ کہ مل جل کے قبرستانوں میں جاتے تھے رات کو، خاص کر رمضانوں میں اور تاک راتوں میں، نہیں وہ جیسے 10ویں رات، عشر رحمت کی رات اور عشر مغفرت کی آخری رات، اور اس طرح جاتے تھے. پرانی بات کر رہا ہوں، دوست مل گئے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم جاتے تھے، ناطے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. ایک بندہ بس کسی جگہ پر سویا رہتا تھا قبر کے بعد، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، بے خبر سویا رہتا تھا. اب اس کو کیا منع کریں گے، اب تو ڈرتا ہی نہیں ہے یہ. تو یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے.
दोबारा ले गए। यूँ अकेला जाने में वैसे रिस्क है कि डर जाएगा। बाल कोई चुटकुला है समझाने के लिए कि कुछ दोस्त आपस में मतलब वो बोलते हैं कि कब्रिस्तान जो फुला है ना, वो उसमें जिन रहता है, वो फुला दरख्त है कोई मर्द का बच्चा जो वहाँ कर ये कील ठोक कर आ जाए, तो एक वो मैं नहीं डरता किसी से, तो वो गया, सारे दूर हो गए, नजर ही नहीं आ रहा है। फिर रात के सन्नाटे में ये पहुंचा उस दरख्त के पास। अब वो हथौड़ी भी थी, कील भी थी, और बैठ कर उसने कील ठोकी। तो अब वो उठने लगा तो उठ नहीं पाया, कपड़ा उसका जैसे किसी ने पकड़ लिया, रुका हुआ है। अभी उठ तो आप भी बोला चिन्ह ने पकड़ लिया मेरे को। अब वो मतलब मेरे को हार्ट फैट हो गया, उसका दिल फट गया कि मुझे जिन्ने वाकई पकड़ लिया, मैं उठ ही नहीं पा रहा। अब उस बहुत देर के बाद जब उसके दोस्त हुई आया क्यों नहीं हुआ क्या, तो देखा उसको जाकर तो मरा पड़ा था। फिर जब उसको हटाना तो वो हट नहीं पा रहा था, फिर देखा तो वो कील जो थी ना, इत्तेफाक से उसका जो कपड़ा था ना पीछे का, वो कील उसने घबराहट में उसमें ठोक दी थी। कपड़ा जमीन में रखा था, उस पर कील ठोक दी थी। अब ये उकदा हल हुआ कि जिन ने नहीं पकड़ा था, ये इसकी कील ने पकड़ा था उसको। कील ठुक गई थी कपड़े में, और ये समझा जिन पकड़ा, जिन ने पकड़ा है, और ये बेचारा जान से गया। तो ऐसे ने करना नहीं चाहिए कि जब वो पहले से खौफ है और अपनी होशियारी करने के लिए या बहादुरी जताने के लिए तो सांप के बिल में हाथ डाल देना ये बहादुरी नहीं है। सांप को कंट्रोल कर लेना, काबू कर लेना, ये बहादुरी है। अमीर सुन्नत ने एक बहुत प्यारा एक इबारत लिख कर दी थी, लाइन लिख कर दी थी, मुझे दी थी, हिम्मत और हमाकत में फ़र्क है। बहुत खूबसूरत एक वर्ड बना ना, हिम्मत और हमाकत। मौजू चल रहा था तो आपने फरमाया ये हिम्मत नहीं, ये हमाकत है। तो हिम्मत और हमाकत के फ़र्क को फिर आपने वाज़ेह किया था कि हर जगह पर ये हिम्मत के काम नहीं होते, बादों का हिम्मत दिखाने का मौका होता नहीं है, ये हमाकत होती है, यानी बेवकूफ़ी होती है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है कि एक बच्ची है जो चाहती है कि मेरी शादी नेक माहौल में हो, दीनी माहौल में हो, ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी ये फ़ायदा हो, लेकिन फैमिली मेम्बर जो हैं वो इस तरह के वो सोच के नहीं होते और वो अपनी समझ से और अपनी पसंद से शादी कराने पर बज़िद होते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, बेटी को क्या करना चाहिए, फैमिली को क्या करना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे? अल्लाह, यह है बड़ा नाजुक टॉपिक। इसमें ज़रा को लड़की तो बेचारी बेबस है, वो सिर्फ चाह ही सकती है और कुछ कर नहीं सकती। तो घर वालों को चाहिए कि अगर उसकी जो तलब है तो जायज़ तलब, इसके मजाजी में फंसी हुई ये और सूरत है। ये जनरली वो कह रही है कि मुझे नेक रिश्ता चाहिए, ऐसा भी नहीं कुछ। हाँ बोल दो ना कि मुझे नेक कराना चाहिए ताकि हमारे घर में नमाजी पैदा हों और अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करने वाले पैदा हों। तो माँ बाप को फिर उसका एहतराम करना दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देगा। और उसको कार्य सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। एक तो उसकी दिलजुई होगी, दूसरा है कि उसकी आखिरत का वो फ़ायदा चाहती है तो इसमें मदद होगी। और कुरान करीम की इस आयत पर अमल होगा, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो इसलिए वो माँ बाप को तो चाहिए कि इसकी बात पर बिल्कुल 100% अमल करे। अपनी अगर सोच कि हमारी बिरादरी और बिरादरी के झगड़े होते हैं, असल बिरादरी से हम बाहर हमने कभी की नहीं है। अब चाहे चोर उचक्का हो, चाहे लुच्चा लफंगा हो बिरादरी का, इससे बड़ी बात खराबियाँ पैदा होती हैं। हो बिरादरी में बेशक हो, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा सूरत भी सही है तो खाली सूरत नहीं चली ना, सीरत मेन है ना, कि सीरत भी उसकी सही हो। तो मतलब ये नहीं, अब तो बिरादरियों के बाहर लोग निकलने लगे, काफ़ी होगा, काफ़ी। अब तो ये दावत इस्लामी ने काफ़ी रुख तब्दील किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि दावत इस्लामी में अब बिरादरियों से लोग इस्लामी भाई बाहर निकल रहे हैं, इस्लामी बहनें बाहर निकल रही हैं। घरों में जब दीनी माहौल हो गया ना, तो घर का जहन बन गया ना, अब ये बिरादरी के बाहर आ जाता है कि यार सीरत देखनी है और ये रस्म और रवाज नहीं देखने कि बिरादरी ही जन्नत में ले जाएगी, ज़रूरी तो नहीं है ना।
तो जाना जन्नत में, जन्नत में सारी बिरादरियाँ होंगी, एक ही बिरादरी बन जाएगी, सब उसका नाम होगा जन्नती। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए कि फ़रीक़ैन को चाहिए कि सोच समझ कर और आखिरत को पेश नज़र रखें। वक्ती तौर पर अड़ाउड़ी करके अगर गलत जगह शादी करवा दी ना तो फिर बाज़ औक़ात ये कि बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, ख़ुदकुशियाँ तक हो जाती है, सब वाक़यात बनते हैं। तो और वरना ये कि वो कोई बीमारी लग गई, कुड़न और दिल जलता रहे कि यहाँ कापस गई मैं। हमको तो बहुत तजुर्बा लेटर, और ये पहले लेटर में पढ़ता था, नहीं पढ़ पाता, तो इतने इस तरह के भी आते थे तो कि बेचारियाँ फंस जाती थी, कभी बेचारे फंस जाते थे। सही भाइयों को भी ज़रा इनका भी अगर ये मांगते हैं कि मतलब हमको कोई दीनी माहौल में रिश्ता चाहिए और हमें को नेक कराना चाहिए, तो बिल्कुल माँ बाप को बिल्कुल उसकी बात माननी चाहिए। इसके मजाजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। सही है। नसीब वाले हुजूर वालिदैन के जिनकी बेटियां कहती हैं कि हमें नेक घराना चाहिए और बेटे कहते हैं हमें नेक घराना चाहिए, वो माँ बाप यकीन माने खुश नसीब हैं। यहाँ तो बेटा लाकर खड़ी कर देता है और बेटी लाकर खड़ा कर देती है कि मैंने इससे शादी कर ली है, वो बोलता है मैंने इससे शादी कर ली है। माँ बाप के बस में कुछ भी नहीं रहता। ऐसे इन हालात में, जो दुनिया भर के ये हालात में मैं बयान कर रहा हूँ, इनमें वो माँ बाप कितने खुश नसीब हैं जिनकी बेटियाँ इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर कर देती हैं कि हमारी शादी किसी नेक घराने में और सलात और सुन्नत का पाबंद आशिक रसूल लड़का हो जिसमें हमारी शादी कीजिएगा। वरना उसकी बात असल में इसमें माँ बाप को भी देखना, बाद औक़ात घर में माँ बाप ने भी कुछ कोशिश की होती है और बेटी को बाकायदा एक बापर्दा बनाया होता है, लेकिन शादी करते वक्त ये इस बात का बाद वक़्त ख्याल नहीं करते, तो ऐसा होता है कि बेटी की शादी तो हो गई लेकिन वहाँ बेटी के पर्दे के मसाइल हो गए। और उसकी तो आप ही ने तरबियत की थी कि बेटी बापर्दा रहेगी और घर में भी पर्दे का माहौल रहेगा। तो ये वालिदैन के लिए बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को, जब बेटा भी कहता है कि मुझे कोई ऐसी लड़की दें जो बाहया हो, शर्म हया वाली हो, नमाजी हो, नेक हो, परहेज़गार हो, तो और ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो बिल्कुल नक्शा बदल दिया, अल्लाह की रहमत है। तो इनकी कदर करें और इस नेमत को शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने ऐसी औलाद अता की है, और फिर ऐसा ही घराना ढूंढें कि जहाँ पर ये नेकी और तक़वा परहेज़गारी हमें मिल जाए। हम कोशिश कर सकते हैं, फिर शादी के बाद फिर क्या नतीजा निकलता तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो डेफिनेटली वो बात की बात, लेकिन बंदा यही चीज़ देगा, हमें देख के ही हम कपड़ा लेते हैं ना, बाद में पता चलता है कपड़ा कैसा है, लेकिन बंदा देख तो सही ले और अपने तो पर पूरी कोशिश कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या है ना, बाज बच्चे रोजे की हालत में अंगूठा चूसते हैं या मुंह में हाथ डालकर नाखून खाते हैं। छी छी छी। तो प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे ये बहुत बुरी बात है, इससे रोजे पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? क्या ऐसा करने से रोजा टूट जाएगा? अगर अंगूठे भी चूसते हैं, उंगलियां भी चूसते हैं, जो चीज़ आई उसको भी चूस रहे होते हैं हाथ में, तो ये है तो परेशान कुन है और नुकसानदेह भी है कि तरह तरह के जरासीम लगे हुए होते चीज़ों में, हाथ इधर लगाए उधर लगाए और फिर ये मुंह में डाले। तो अब ये कि रोज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो रोज़ा उस सूरत में कि इसमें कोई सी चीज़ लगी हुई है उंगली पे, अंगूठे पे, और वो चीज़ उसने मुंह में डाला तो वो चीज़ छूटी उससे, अब उसका टेस्ट जो है ये उतरा हल्क में और रोज़ा भी याद है, तो रोज़ा टूटेगा, वरना सिर्फ अंगूठा मुंह में डाला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अंगूठा है, उंगली, नाखून खा रहे तो नाखून टूटा और वो हल्क से नीचे उतरा, पता चला ये गया और रोज़ा भी याद है तो रोज़ा टूट गया। नाखून खाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ना कुतरने का ताल्लुक है दांतों से, कैंची से कतरते हैं, दांतों से कुतरते हैं, ये फ़र्क समझिएगा। तो दांतों से कुतरते हैं बाद लोग नाखून, ये बड़े बड़े करते हैं, खाली बच्चे नहीं करते। बड़ों की बात ये आदत जाती नहीं है, अगर ये पड़ गई ना किसी की बहुत 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 दुश्वारी होती है।
जाती नहीं आसानी से। आपने सुबह भी ये बात बयान की थी, फजर के बाद का जो आपका सिलसिला था कि लोग बैठे बैठे दाढ़ी से खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अच्छा, इतने ये एब्सेंट माइंडेड होते हैं कि इनका मतलब कभी नाक में उंगली डाल देंगे, कभी क्या कर लेंगे, कभी नाक कान में उंगली घुमाते रहेंगे। अब सामने वाला देख कर परेशान होता है कि यार ये है क्या। अच्छा, उनको पता ही नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि वो एब्सेंट माइंडेड लोग हैं। तो अब ये जो आदतें जो लोगों में पड़ जाती हैं, कुछ ना कुछ करते रहने की, हाथ हिलाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अब कैसे निकले। अच्छा, एक बात होगा, ये खुद भी तंग होते हैं, इनको लोग टोकते रहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाते हैं। ये निकले कैसे आदत? सोच बने यार, सोच बने ना तो एक तो ये कि जैसे कि जो भी हरकत सकनत, यानी ये हिलाई उंगली तो क्यों, रोकी तो क्यों, है ना। हर हरकत और सकनत पर क़यामत के दिन 3 सवालात हैं। ये बड़ा मतलब है कि बड़े यकीन मन खौफ की बात, बहुत खौफ की बात है। मगर ऐसी सोच हमारी बन नहीं पाती कि इसका क्या है। कभी कभी ऐसी सोच, मुझे इसका तजुर्बा है कि अब जैसे कि ये चीज़ मुझे उठानी है या ये रखनी है या इसको हिलाना है, तो कभी कभी मैं रुक जाता हूँ कि यार अगर पूछा गया ये क्यों किया था, जवाब सोच लूँ कि क्या देना है। जवाब तो होता है नहीं सर, माँ जवाब कौन दे सकता है। तो फिर मैं कोशिश करके बात आता, लेकिन कभी कभार होता है, बाकी तो चल ही रहा होता है निज़ाम। तो ये एक मतलब सोच बने ना कि अब मैं जो ये हिला रहा हूँ, टांगे हिला रहा हूँ, और बिल्कुल यानी कि वो खड़े होने का अंदाज, एक टांग ऊंचा तो एक टांग नीचा, डिसबैलेंस खड़े होते हैं। फिर दुनियावी नुकसान उसका ये होता है कि डिसबैलेंस बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं डिसबैलेंस, समझे। तो इनको आगे चल के तकलीफ है। बाज़ औक़ात इन चीज़ों, इन जगहों पे दर्द पकड़ लेता है। एक बार मुझे यहाँ बहुत दर्द हो गया था, वाकई दर्द से अब मैं क्या करूँगा, आजमाइश। फिर वो कुछ देर या कुछ घंटे या कुछ दिन रहा होगा दर्द, मैं करूँ क्या, कैसे हो। फिर मेरी तवज्जो गई, मैं जो मुलाकातें करता था ना, तो यूँ करके करता था मुलाकातें, लेफ्ट साइड पर लाइन लगती थी, तो मैं वो यार हो ना हो, मैं ये यूँ मुलाकातें करता हूँ तो ये बोझ इस तरफ आ रहा है, तो ये शायद इसकी वजह से मुझे दर्द हो गया हो। ये कुदरती मेरे जहन में आई ये बात। तो फिर मैंने अपना जो बैलेंस ठीक किया और मुलाकात में मैं यूँ रहने लगा, झुकता नहीं था, तो सेट हो गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्द ठीक हो गया। तो और मेरा जहन क्लियर हुआ कि ये इस तरह मतलब डिसबैलेंस, आगे पीछे एक जगह पर बोझ पड़ता ही रहे तो दर्द हो जाता है। तो ये टांगे उलट पुलट ही रखते हैं, आपके सामने ही था यार। एक ने कहा मेरी यार ये एड़ियों में दर्द नहीं जा रहा, वो डॉक्टर से दवाएं इस्तेमाल कर फ़ायदा नहीं हो, डॉक्टर हो सकता है कि वो डॉक्टर की भी तवज्जो नहीं होगी। तो मैंने कहा तुम इस तरह बैठते हो एड़ियाँ रख कर, तो बोला हाँ। तो मैंने कहा ये तेरी बीमारी, इसको एड़ियों को सही कर दे तो तेरा दर्द इंशाअल्लाह चला जाएगा। तो अब पता नहीं फिर क्या हुआ बात। अब हर वक्त तो मरीज अपने साथ नहीं होता ना, कभी कभी बुलाते लेकिन पूछना भूल जाता हूँ। अब आप पूछना, तो अगर इसको ठीक हो गया तो अपने को एक और वो होगा ना कि मतलब किस तरह आदमी पोजीशन अपनी सेट कर ले। लेकिन समझ नहीं आती है, अभी भी डिसबैलेंस कहीं बैठे होंगे, समझे। तो खाली 1-2 मिनट के लिए होने से नहीं दर्द होता, यानी कि ग़ालिबन आधा घंटा एक ही पोजीशन पर बैठेगा ना, जो पोजीशन जो डिसबैलेंस बैठेगा आधा घंटा, तो ये फिर अब नुकसान का दौरानिया इसका शुरू होने लगेगा। कुछ देर में नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोगों की आदत होती है देर तक वो यूं तो यूं, यूं तो यूं। अब वो झुक के लिखते हैं, झुक के लिखते हैं, झुक के खाते हैं यूं, बिल्कुल बेवड़े वल के, हम लोग बेवड़ा बोलते हैं इसको, बेवड़ा वलना। तो वो आधे झुक कर, तो इसमें क्या आँखों को जोर लगता है कि एक अननेचुरल स्टाइल है।
आंखों पर जोर लगेगा और फेफड़ों पे जोर पड़ेगा, फेफड़ा मुड़ेगा ना यूँ करेंगे तो फेफड़े, आंखें, कमर, कमर भी खामखा मुड़ रही है और देर तक यूँ मुड़ी पड़ी है जब तक लिख रहे हैं। तो ये 3 जगहों पर इसको दर्द, बीमारी, फेफड़े की बीमारी, आंखों की कमजोरी, इन चीज़ों से इसको वास्ता आज नहीं तो कल पड़ सकता है, लेकिन आदत इसी पक्की हो जाती कि जाती नहीं है। तो ये टेबल कुर्सी इस तरह हो के मतलब ये। अच्छा फिर ये कि जैसे अब बैठे ना तो मैं तो यूँ होता रहता, आपने नोट किया होगा, कुर्सियाँ भी सही नहीं है। आप बोले कुर्सियाँ सही नहीं है, ये बंदा ही सही है खाली। हाँ नहीं, कुर्सियाँ सही नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई कुर्सी। अब देखो ये कुर्सी स्लोप इस तरफ है नीचे की तरफ, तो मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ, बैठ नहीं पाता सही। तो कुर्सी भी अगर आदमी खुद बनवाए ना अपनी मर्जी की, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से बनवाए, तो मतलब कुर्सी सही होगी। खाली वो यूं और यूं बाहर कर देते हैं कि एक कमर शाहों के लिए, ये मतलब नहीं होता। देखो ये भी स्लोप है, इसका स्लोप नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और कमर जो है ये बिल्कुल सीधी लगी भी हो, इस तरह बैठे, और पाँव बिल्कुल ज़मीन पर जमे भी हो। अब कोनी ऊंची है तो पंजा ऊंचा है, तो ये ज़रा के गलत वो पोजीशन है, तो यूँ दर्द हो जाते हैं। यूँ अगर बंदा अपने आप को सही करता रहे ना, तो जैसे मैं, अब मेरा मसला है कि मेरे भी दर्दें तो हुई हैं और ठीक ठाक मुझे अब बेहतरी काफ़ी है उस मुकाबले में। पहले जो हुई थी दर्द था, कि अब मैं रोज़ फिजियोथेरेपी तकरीबन रोज़ कर रहा हूँ। अब आज छुट्टी हो गई, कुछ आज ऐसे रात की मसरूफियत थी कि मेरी जो भी हालत थी सुबह, तो नींद मतलब वो एज और वीकनेस और तो वो बर्दाश्त नहीं होती, वरना रात में मैं बहुत जागा हूँ। तो अब आज जाग गया, और दिन में भी जल्दी, तो फिजियोथेरेपी मैंने छुट्टी कर दी, मैंने कहा आज नहीं करनी है। तो उसमें अभी 1.5-2 घंटे बाद लग जाते हैं। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपने आप को काफ़ी बेहतर, फुल नहीं काफ़ी बेहतर। और मुझे डॉक्टर ने कहा था 20 मिनट या आधा घंटा आप बैठे, फिर उठ के थोड़ा चले, 1 मिनट के लिए भले चले, ताकि आपकी पोजीशन चेंज हो। देर तक बैठेंगे तो आजमाइश, लेकिन अब बैठना पड़ जाता है, कभी भूल भी जाता हूँ, कभी उठता भी हूँ। बैत शुरू होती है ना, तो अब तो मुफ्ती हसन वगैरह भी याद दिला देते हैं, उठ जाओ, तो उठ जाता हूँ। फिर सुस्ती भी होती है उठने में, कभी रिदम एक होता है बना हुआ गुफ्तगू का, बयान का, तो उठे और बिल्कुल। लेकिन जो करेंगे इस तरह अमल, तो फ़ायदा होगा बदन को। बदन के फ़ायदे के लिए इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की बंदा नियत करे कि क़ुव्वत हासिल होती है इससे। लेकिन ये कि जो टेबलेट्स और ये दवाएं ना, इनके साइड इफ़ेक्ट ख़तरनाक होते हैं। इसके मुकाबले फिजियोथेरेपी में फ़ायदा ज़्यादा है। फिजियोथेरेपी बंदा अगर इसके इस तरह के दर्द है तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाए। लेकिन इसमें भी अगर कोई डॉक्टर अगर 2 नंबर का हुआ ना, यानी कि ऑफिशियली डॉक्टर ना हुआ, यानी कि तो वो अगर गलत फिजियोथेरेपी करा देगा तो फिर वो दवाओं से 100 गुना उसको साइड इफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल हालत ख़राब कर देगा वो। तो डॉक्टर भी परफेक्ट हो, समझता हो, और वाकई डॉक्टर हो, सिखाड़ू, हमारे में बोलते सिखाड़ू ना हो, नीम हकीम खतर है जान वाला हिसाब ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।